Hi, I'm extremely happy to welcome you to the 14th lecture of this amazing digital marketing series. Till now, what we have discussed was based on the theoretical knowledge. But from now, from this stage, what we are going to learn is going to be based on practical knowledge. And now, I need your 100% focus towards me to promote Amazon product. The very first step is to choose the product. The second step is to create the website for the product. And the third step is to create the content for the selected product. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एयर कंडीशनर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मुझे एयर कंडीशनर्स के रिगार्डिंग कंटेंट लिखना पड़ेगा. जैसे आई कैन राइट एन आर्टिकल ऑन 10 बेस्ट एयर कंडीशनर्स इन इंडिया, and after my article is completed, I need to publish that article on my website. And after this, we are going to have a website, and on that website, we are going to have one article which is written on 10 best air conditioners in India. And on that article, we are going to have affiliate links which will redirect to Amazon once anybody clicks on them. And after landing on Amazon, अगर वो visitors हमारा recommended product buy कर लेते हैं तो हमें उन प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कमीशन रिसीव होंगी. तो इस पूरे प्रोसेस में द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द प्रोडक्ट, एंड यही हमारा आज का टॉपिक है. टुडे वी विल डिस्कस द मेथोडोलॉजी वी नीड टू फॉलो टू एनालाइज हाउ मच अमाउंट वी कैन अर्न ऑन मंथली बेसिस by promoting a product from Amazon's catalog using our website. I have divided the whole process into 3 major steps. Number 1 is checking the advertising fees. Number 2 is checking the search volume of that product. Number 3 is checking the level of difficulty in promoting the same product. Firstly, let's see the number 1. That is checking the advertising fees. So जैसे previous lecture में I told you, you can check कि for different types of products Amazon अपने affiliates को कितना कमीशन ऑफर करता है. यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्सक्लूसिव कैटेगरी में रखा गया है एंड इन पर कोई एप्लीकेबल कमीशन नहीं होती, विच मीन्स यू डोंट अर्न एनी कमीशंस फॉर रेफरिंग दीज प्रोडक्ट्स. So make sure you don't make content for these types of products. In this series, we are going to create a website for promoting refrigerators. And why I have chosen refrigerators, ये आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा. For now, let me tell you, refrigerators large appliances की कैटेगरी के अंदर आते हैं. And here we can see that Amazon offers a commission rate of 5% on large appliances category of products. If we go on Amazon and search for refrigerators, we can see कि एक रेफ्रिजरेटर का एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास होता है. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज मुझे एक रेफ्रिजरेटर की सेल पर 20,000 का 5% कमीशन रिसीव होगा, विच इज इक्वल टू 1,000 इंडियन रुपीज. बट दिस कमीशन इज फॉर अ सिंगल सेल. नाउ लेट अस टेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर्स आई कैन एक्चुअली सेल इन द होल मंथ. फॉर दैट वी विल मूव टू द स्टेप 2 where we will check the search volume of the queries related to refrigerators on Google. हमें यहाँ पर डायरेक्टली ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट हम चूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के गूगल पर एक मंथ में कितनी सर्चेज हैं. जितनी ज़्यादा सर्चेज होंगी दैट मीन्स उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं. सो आई विल जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कीवर्ड वन कैन यूज टू सर्च रेफ्रिजरेटर्स फॉर द हाउस, सच एज बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया. Now here we can see कि इस कीवर्ड के लिए that is best refrigerators in India के लिए number 1 ranking web page is this one and number 2 is this one. Now हमें ये चेक करना है कि इस वेब पेज पर सर्च इंजन के थ्रू मंथली कितना ट्रैफिक आ रहा है, बिकॉज अगर हमें नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करना है तो हमें इसी वेब पेज को आउट रैंक करना पड़ेगा, मतलब पीछे छोड़ना पड़ेगा. एंड जब हम ऐसा कर लेंगे तो जितना ट्रैफिक इस वेब पेज पर आ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही ट्रैफिक हमारे वेब पेज पर भी आएगा. तो लेट मी शो यू कि हम ये चेक कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें इस नंबर 1 रैंकिंग वेब पेज के यूआरएल को कॉपी करना है. देन हम दोबारा गूगल पर जाएंगे एंड सर्च करेंगे उबर सजेस्ट. देन अगेन हम सबसे ऊपर वाले रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और इस वेब पेज के ओपन होने के बाद हम यहाँ इस सर्च बार में हमने जो यूआरएल कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे. Now from here we will select India English, which means ये जो डेटा अभी हमें पता लगेगा वो सिर्फ इंडिया के लिए होगा and in English language. Now click here on search. इसके बाद अब यहाँ लेफ्ट पर आकर we need to select top pages by traffic. So now here we can see जो पहले वेब पेज हमें यहाँ पर दिख रहा है
ये वही 12 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया वाला वेब पेज है और इस पर एक मंथ में गूगल के सर्च इंजन के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 28,000 यूजर्स आ रहे हैं। वाओ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 28,000 पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग रेफ्रिजरेटर्स, विच मीन्स अगर मैं भी बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया के लिए अपने वेब पेज को सर्च इंजन पर नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करवा देता हूं, तो मेरे वेब पेज पर भी 28,000 यूजर्स मंथली आ सकेंगे। एंड हियर व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू अस कि इन 28,000 विजिटर्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हमारे एफिलिएट लिंक्स पर क्लिक करें एंड Amazon से कुछ बाय करें, and this metric is known as the conversion rate of a web page. Here, the conversion rate is defined as the number of people who are actually clicking on an affiliate link and buying the recommended product from Amazon out of all the people who are landing to our web page. For example, अगर मेरे वेब पेज पर 28,000 यूजर्स आते हैं, बट उन 28,000 यूजर्स में से सिर्फ 280 यूजर्स ही हमारे एफिलिएट लिंक्स पर क्लिक करते हैं एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट Amazon से बाय कर लेते हैं। सो द कन्वर्जन रेट ऑफ माई वेबसाइट विल बी द नंबर ऑफ पीपल clicking on the affiliate links divided by the total number of people coming to my web page. In this case, I'm assuming that 280 people will click on my affiliate link and out of 28,000 people, which makes the conversion rate to be 1%. But trust me, according to my experience, एक affiliate website का average conversion rate almost 0.5% के आसपास रहता है, which means only 0.5% users out of all the 28,000 visitors, that is only 140 people are actually going to buy our recommended product from Amazon. And we already know that on an average हम एक रेफ्रिजरेटर की सेल पर 1000 का कमीशन अर्न कर सकते हैं। And according to our analysis, after ranking on number 1 position on search engine result pages, 0.5% of the total visitors are actually going to buy from our affiliate link. So now if we calculate, there will be 140 sales into 1,000 rupees of commission and it is equal to 1,40,000 rupees of profit. So this is the amount you can earn from just one top ranking web page on Google for just one type of product from Amazon's catalog. And I hope now you understand the potential of becoming an affiliate with Amazon. But I want to be honest with you. This is not a super easy task. It's not like you will be earning that huge amount in just 1 or 2 months. You have to be patient, you have to be working on your website, web pages for few months and doing the search engine optimization of it. And slowly and steadily, you will see the results which we have just talked about. Now, let's see the last and a very important factor which you need to consider before finalizing your product from Amazon's catalog, which is checking the SEO difficulty of the product. Like refrigerators, there could be so many products जिनका सर्च वॉल्यूम डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या मे बी ईयरफोन्स. सो द क्वेश्चन इज why aren't we going forward with these kind of products which will definitely have a search volume higher than refrigerators on Google? The answer is because of SEO difficulty. Let me show you what does this term SEO difficulty refers to. जैसे हमने सर्च वॉल्यूम चेक किया था, वैसे ही अगर इस स्क्रीन पे आकर अगर हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, यहाँ से यू विल गेट टू नो कि जिन कीवर्ड्स के लिए इस वेब पेज पर इतना ट्रैफिक आ रहा है उनकी SEO डिफ़िकल्टी कितनी है. मतलब पर्टिकुलरली एक कीवर्ड के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेब पेज का SEO करना कितना टफ होगा, ये हमें SEO डिफ़िकल्टी से पता लगता है. एंड हायर द SEO डिफ़िकल्टी, मोर डिफ़िकल्ट इट विल बिकम फॉर अस टू रैंक दैट वेब पेज ऑन द टॉप पोजीशन ऑन सर्च इंजन. अगर SEO डिफ़िकल्टी 50 से ज़्यादा है, दैट मीन्स उस कीवर्ड के लिए नंबर 1 पर रैंक करना बहुत टफ होने वाला है. अगर बिटवीन 40 to 50 है, दैट मीन्स कि थोड़ा टफ तो होगा, बट अगर हम अच्छे से ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे तो विद इन 6 to 12 मंथ्स हम नंबर 1 पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं. एंड इफ़ द SEO डिफ़िकल्टी इज़ लेस देन 40, तो हमें बिना कुछ ज़्यादा सोचे उन कीवर्ड्स को पिक कर लेना है एंड देन उन सिलेक्टेड कीवर्ड्स को टारगेट करके वेब पेजेस क्रिएट करने हैं एंड उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी शुरू करनी है. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी कैन सी बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है एंड इसकी सर्च डिफ़िकल्टी भी सिर्फ 37 है. एंड दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग रेफ्रिजरेटर्स. एंड फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, आप किसी भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम, उसका अर्निंग पोटेंशियल एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीवर्ड की SEO डिफ़िकल्टी कितनी है ये चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, let us check the SEO difficulty for some other product. जैसे we can check the SEO difficulty for earbuds.
ईयरबड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड हो सकता है बेस्ट ब्लूटूथ ईयरबड्स। सो लेट अस चेक कि इस कीवर्ड की एसईओ डिफिकल्टी और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सो हियर इट इज। इसकी मंथली सर्चेस ऑलमोस्ट 50,000 है, बट इसकी एसईओ डिफिकल्टी भी हाई है, दैट इज 58। सो रैंकिंग फॉर दिस कीवर्ड ऑन द टॉप could get us more website visitors and more profit. But looking at the SEO difficulty, we can also say it is going to be tougher than refrigerators. So overall, जब हमें अपनी एफिलिएट वेबसाइट के लिए कोई प्रोडक्ट पिक करना है तो सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को चेक करना है कि उस पर कितना कमीशन रेट है। देन हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करना है। एंड देन अगर कमीशन रेट और सर्च वॉल्यूम दोनों हाई हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली चेक करना है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड की एसईओ डिफिकल्टी कितनी है। अगर एसईओ डिफिकल्टी लेस देन 40 है तो हमें बिना कुछ सोचे और समझे उस प्रोडक्ट को पिक कर लेना है एंड एक वेब पेज बनाना शुरू करना है। इन दिस कोर्स जो वेबसाइट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा वो रेफ्रिजरेटर्स पर बेस्ड होगी, बट आई रियली वांट कि आप जो सा भी प्रोडक्ट पिक करें वो डिफरेंट हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जिनका अर्निंग पोटेंशियल हाई है। So make sure you check all of them. This is all for today. And here you have today's homework. Just search for top 3 products which you like the most and check their commission rates, search volume and SEO difficulty. And let me know in the comment section. For now, bye bye, take care. I'll see you in the next lecture.